Namaskar viewers, good evening. You are watching Sunset TV with me Rajiv Kumar Singh, and this is House Highlights, where we bring you the summary of the proceedings of both the Houses of Parliament today. Before we begin with the details of today's Parliament session, a look at the headlines. Parliament passes Family Courts Amendment Bill 2022 by voice vote in Rajya Sabha. Bill grants statutory cover to family courts in Himachal and Nagaland. Proceedings disrupted in Upper House. Leader of Opposition Mallikarjun Kharge raises issue of ED action against opposition leaders. Leader of the House Piyush Goyal says law will take its own course. Proceedings disrupted in Lok Sabha as well. Opposition parties protest over issues including ED action, price rise and GST rate hike. Parliament on Thursday passed the Family Courts Amendment Bill 2022. The bill was passed in the Upper House by a voice vote amid sloganeering by the opposition led by the Congress members who alleged misuse of autonomous bodies. The bill grants statutory cover to family courts set up in Himachal Pradesh and Nagaland and retrospectively validates all actions taken by them. In reply to the discussion on the bill, Minister of Law and Justice Kiren Rijiju stressed on the need to have the legislation passed considering the long list of pending cases. जैसे बिहार से हमारे ठाकुर साहब ने कहा, अन्य सदस्यों ने पूछा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में एक फैमिली कोर्ट बनना चाहिए। ये हमने सुझाव राज्य सरकारों को भी कह दिया है और साथ साथ में हाई कोर्ट्स को भी, क्योंकि हाई कोर्ट्स और राज्य सरकार मिलकर के तय करते हैं कि कितना फैमिली कोर्ट कहाँ बनना है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारे माननीय सदस्यों के जो आवाज है उससे मैं सहमत करता हूँ कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली कोर्ट बनाया जाए और जितना जल्दी हो सके जो 11 लाख से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी सुलह किया जाए. Members cutting across party lines took part in the discussion. As soon as the bill was cleared, Deputy Chairman Harivansh adjourned the House for the day. Lok Sabha had passed the bill last week. जो संविधान संशोधन विधेयक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे मंत्री जी के द्वारा 2 राज्यों को न्याय दिलाने के हेतु कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में विश्वास करता है। संशोधन अधिनियम के शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई थी। किए गए कर्तव्य की गई नियुक्तियों और शक्तियों कार्यों को वैध माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय का कामकाज 15 फरवरी 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने तक और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 के बीच संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने तक वैध माना जाएगा। इन संशोधन लाने का कारण हिमाचल प्रदेश में 3 परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती है। महोदय, यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 1(3) में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड में अन्य राज्यों की भांति प्रभावित हो और अब तक जो भी वहाँ न्यायालय द्वारा फैसले हुए हैं वह वैध हो। इन दोनों राज्यों में बिना केंद्र की अनुसूचना के ही न्यायालय काम कर रहा था, अब उसकी वैधता मिल जाएगी। Institution is extremely necessary. India family is centered nation, but also rifts between family members, especially between 2 married adults, are quite prominent. We are now in the present wherein 2 unhappy adults in a marriage are considerate of seeking a decree of divorce mutually. Women now, unlike the past, have become more vocal and about the facets of domestic violence. Hence, they are quick to approach the courts for the grievances redressal. हिमाचल प्रदेश
and Nagaland is not having the special court, family court. That is why the amendment has brought by before the Honorable House. Sir, I am recommending that whatever the government has taken, at the same time, sir, I want to see that in Tamil Nadu, 40 family courts are available. Tamil Nadu, 40 is established. The family courts need to be generally sensitized. Time to be prescribed. Such procedure, with regard to the another important aspect, I require the Honorable Law Minister to pay the attention. With regard to the procedure in family court has to be simplified. Now it is dealing with the criminal procedure code and civil procedure code deals with the procedural aspect. Unless procedure is simplified, the delay cannot be avoided. So procedural acts also have to be amended. The Rajya Sabha was today adjourned for the day following protests from the opposition on allegations of the misuse of autonomous bodies and investigative agencies. When the House met for the day, Chairman M. Venkaiah Naidu rejected adjournment notices given by Congress and AAP on alleged misuse of the investigative agencies, Agnipath scheme and other issues. Amid noisy scenes, Chairman M. Venkaiah Naidu adjourned the House till 12 noon. I have not admitted anything. I am only hearing his observation. ये इसको वीडियो कौन बनाया साहब? Both sides. उनका Both sides. इन्होंने किया। House Sir. stands adjourned सर to 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, members from Congress, TMC, Shiv Sena and others trooped into the well, raising slogans against the government. Amid continuous uproar, the chairman repeatedly urged to maintain order in the House. Moving on, the opposition on Thursday targeted the government in the Rajya Sabha over alleged misuse of autonomous bodies. Raising the issue during the question hour, leader of the opposition Mallikarjun Kharge alleged that the autonomous agencies were being misused to suppress the opposition parties across the country. मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। अब दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? Responding to his remarks, the leader of the House in the Rajya Sabha, Piyush Goyal, said that the government does not interfere in the work of enforcement agencies and that law will take its own course. पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है, और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक ये विषय गया है। और जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो आज जेल में, अगर वो जेल में है और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं समझता हूं ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। Time for a short break here. We will be right back with more session updates. तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी ये चिंता थी कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के बावजूद भारत राजनीतिक टुकड़ों में बटा रहा है। लिहाजा कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि अब जब हम एक हो गए हैं तो ये एकता का सूत्र लगातार मजबूती की तरफ चले, ये इसे कहीं कोई खतरा पैदा हो। केरल के महामहिम आरिफ मोहम्मद खान से जानेंगे राज्यपाल संस्था की भूमिका के विषय में। शिक्षा, स्वास्थ्य,
सोशल वेलफेयर सेक्टर, सरकार का काम है उसको करना, लेकिन राज्यपाल की एक बड़ी अहम भूमिका हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण, वो ये जन चेतना पैदा करने की। करेंगे बात राज्य सरकार और प्रदेश के संवैधानिक प्रधान के संबंधों की। देखिए राज्यपाल सिर्फ संसद टीवी पर। Welcome back to House Highlights, and now time for the news from the lower house of the Parliament. Lok Sabha proceedings were adjourned for the day on Thursday amid protests by Congress members against the actions of the Enforcement Directorate. As soon as the proceedings began at 11 a.m., Congress and other opposition members protested against the ED actions, GST on essential items and price rise. Amid the sloganeering by opposition members, the question hour went on till around 11:30 a.m. Speaker Om Birla asked the Congress members who were protesting in the well to go back to their seats. The Speaker also warned that he would have to take action if they continued to stand in the well. Amid the din, Speaker Om Birla adjourned the proceedings till 2 p.m. माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, बेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, बेल खड़ो आसन वाले। As soon as the Lok Sabha met at 2 p.m. on Thursday, 2 resolutions were adopted amid slogan shouting and protests by Congress members. Amidst the din, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary moved 2 statutory resolutions pertaining to change in taxation made on May 21st and June 30th. On May 21st, the government announced waiving of customs duty on the import of some raw materials, including cooking coal and ferronickel used by the steel industry. Subsequently, the centre on June 30th imposed a cess on windfall tax of rupees 23,250 per ton on crude oil production. These resolutions, which seek to amend the 8th schedule to the Finance Act 2002, were passed by voice vote. However, as the sloganeering continued, Kirit Solanki, who was in the chair, requested the protesting members to go back to their seats and allow the House to function, after which he adjourned the proceedings for the day. माननीय सदस्यगण, आप सब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि हमें बहस करनी चाहिए, सभा की कार्यवाही चालू करनी चाहिए। ये जो आपका व्यवहार है ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी सीटों पर आप बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 5 अगस्त 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। Several important issues were taken up during question hour in Lok Sabha amid protests by opposition parties over price rise and actions by ED. Questions related to promotion of electric vehicles, promotion of renewable sources of energy were taken up. प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख मौतें इस देश में होती हैं और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयर बैग जो है वो लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाएं। और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अक्टूबर 2022 है, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ये अगस्त का महीना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये कब तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी फिलहाल 2 एयर बैग ऑलरेडी कंपलसरी है, पीछे बैठने वाले लोगों को एयर बैग नहीं है और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयर बैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयर बैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। Sir, constant supply of chain disrupting the continue. One of the biggest obstacle coming from Indian EV manufacturers. The Indian manufacturers are struggling to South lithium-ion batteries, which are largely imported from China, South Korea, and Taiwan. While the price of batteries, lithium carbonate, a key import, have gone up 400% year on year. पेट्रोल से 1 किलोमीटर 11 रुपये 50 पैसे,
डीजल से 9 रुपये 50 पैसे, CNG से 7 रुपये और EV से 1 रुपया। इसमें कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी ये बहुत बड़ी है, जो 50% आती है, जो सम्मान्य सदस्य ने पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में लिथियम आयन बैटरी की कीमत $180 पर किलोवाट आवर थी, 2021 में $140 पर किलोवाट आवर हुई, 2022 में $135 पर किलोवाट आवर हुई। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज से 2 साल के अंदर EV के हमारी मोटर, हमारी स्कूटर और सब प्रकार की कीमतें पेट्रोल के बराबर 2 साल के अंदर होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये जो फंड्स एलोकेट हुए हैं इस CRI इन रोड्स में, ये एविएशन स्किल डेवलपमेंट में जो है, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये जो एयरपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग कार्यरत रहते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या सरकार ऐसे डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाने के किसी प्लान में है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे इसकी कमी होने की वजह से नौजवानों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। मानव संसाधन में भी हमें वृद्धि लानी होगी और इसी सोच और विचारधारा के साथ एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, जहां एक तरफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के आधार पर करीब 110 एफिलिएटेड निजी क्षेत्र के ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में स्थापित हुए और इन सेंटर्स के आधार पर आज टोटल कैंडिडेट्स असेस्ड और सर्टिफाइड दोनों करीब 21,000 ऐसे कैंडिडेट सर्टिफाई हो चुके हैं। ट्रेनर सर्टिफाइड 231 हुए हैं, असेसर सर्टिफाइड 83 हुए हैं और अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर्स इसके साथ 110 हैं। क्या सरकार महिलाओं के सुविधाओं को देखते हुए सोलर एनर्जी, न्यू एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना, प्रोग्राम शुरू किया है क्या? ये गैस सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प भी बन सकता है, यदि हाँ तो इसके लिए अभी तक क्या प्रोविज़न और फंड डिक्लेयर किए हैं? तो इसके बारे में सरकार को चिंता है। तो हम लोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इस पर हम लोगों ने प्रयोग किया। दो तीन तरीके के सोलर चूल्हे, सोलर कुकर डेवलप हुए हैं और वो अभी ट्रायल में है। अभी उसका दाम अधिक है। एक सोलर कुकर का उसमें सोलर पैनल का कॉस्ट ये सब ले करके एक का दाम 45,000 रुपये आता है। हम लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं। एक दूसरे का दाम जो कि ज़्यादा बड़ा है, जिसमें ज़्यादा पैनल लगता है, 1 लाख से ऊपर दाम आता है। In Lok Sabha, ministries laid papers pertaining to their ministers on the table. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 5 श्री रामेश्वर तेली जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कौशल किशोर जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। That's all we have in House Highlights today. Keep watching Sunset TV for all the latest from the Parliament. Thank you.